Good morning to all. Good morning, sir. I hope Good you morning, sir. yes, I hope you enjoy your weekend. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So what we discussed in last lecture? वो तो सर वीकेंड के बाद कहाँ याद रहता है नहीं? Okay, चलो let me. Sir, Yes, sir, yes, sir, yes. partial fraction or inverse Laplace transform formulas. Very good, that's very good. Okay. So in last lecture, we have started our next part of the unit, that is the inverse Laplace transform. Okay. So as we know, the inverse Laplace transform is the inverse or reverse process to the Laplace transform. Okay. जो Laplace transform find करते थे उसका उल्टा process करेंगे, then we will get our inverse Laplace transform. And we done many formulas for that, है ना? Derive किया था ना हमने बहुत सारी formula. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then हमने examples किए थे कि नहीं? No, sir. No, sir. Okay, so we start with that. Okay, so I quickly go through it and then we go for the today's session. So you can see in last lecture we discussed about the partial fraction. So there are 4 types of partial fraction. Then we define the Laplace inverse Laplace transform and done some example or derive some example. Derive some formulas for inverse Laplace transform. Is it okay, everybody? Any confusion in formula? 21 formulas are there. Any confusion? No, sir. ओके No, sir. ये कंप्लीट किया था कि नहीं प्रॉपर्टीज Sir, सिर्फ linear property की. ओके सो लीनियर प्रॉपर्टी लीनियर प्रॉपर्टी इज द सेम एज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ओके लीनियर प्रॉपर्टी जो हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में किया था वही का वही सेम है यहाँ पे है ना so you can see here let fs and gs be the laplace transform of f of t and g of t respectively. Then Laplace inverse of Fs plus Laplace inverse of Fs plus g of s, then you can separate it. Okay, Laplace inverse of first one plus Laplace inverse of second one. And if you have the function in s with multiplication of k, then you can simply k is outside and Laplace inverse of Fs is there. Okay, so this is known as the linearity property. You can directly define in this way also. Laplace inverse of alpha into fs plus beta into g of s, okay, is equal to alpha times Laplace inverse of fs plus beta times Laplace inverse of g of s. Okay, so where alpha and beta are constant, so you can define linearity property in this way also. So is there any doubt, any confusion in linearity property? Anybody? No doubt, sir. Okay, now as we know the first shifting. Okay, first shifting क्या था? Anybody? फर्स्ट शिफ्टिंग किसी को पता है? याद है किसी को फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी? Sir, we have to replace s by s minus a. Okay, very good. Okay, so first shifting property क्या था? You can see on your screen. So if उसका statement ऐसे था, if Laplace transform of f of t is equal to f of s, then Laplace of e raised to at into f of t. If you have the function with the exponential, okay, that means e raised to at into f of t, then you have to simply find out the Laplace transform of f of t, and in that answer you have to replace s tends to s minus a, where a is from e raised to at. Okay, so here s tends to s minus a, and you can simply say that f of s minus a also. Yes or no? Yes, sir. Okay, so same property can be derived from the inverse Laplace. So Laplace inverse of यहाँ पे आप apply करो f of s minus a, then the answer will be
e raised to at into f of t. Okay. Yes, sir. ओके हम जैसे जानते हैं से ये दोनों रिवर्स है ना, तो मैंने L इनवर्स यहां से लगा दिया. सो L इनवर्स ऑफ f ऑफ s माइनस a, तो जो ब्रैकेट में बचा वही का वही पूरा आपका आंसर हो जाएगा. क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Okay, so the next property is that Laplace inverse of fs is equal to f of t, then Laplace inverse of f of s minus a is equal to e raised to at into f of t. Now if you have the s plus a, that means Laplace inverse of f of s plus a, then it is nothing but e raised to minus at into f of t. Okay. Yes, sir. Okay, Yes, now sir. we go for the simple example. Okay, find the inverse Laplace transform of 3 upon s plus 1. So they can also give like this Laplace inverse of 3 upon s plus 1. Find करके दे देंगे, find Laplace inverse of this one. Okay, तो कैसे करेंगे? So start with that. चलो start करते हैं हम उसको. तो Laplace inverse of 3 upon s plus 1. Now first we apply the linearity property, so we can take 3 outside, sorry Laplace inverse, yes, so 3 into Laplace inverse of क्या हो जाएगा 1 upon s plus 1, yes or no? Yes, sir. Okay, now you know very well Laplace inverse of 1 upon s minus a is equal to क्या होता था e raised to 18, है ना, and Laplace transform 1 upon s plus 1 होता, सॉरी s plus a होता था हमारा e raised to minus 18, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So here a is equal to 1, a is Yes, equal sir. to, okay, so a is equal to 1. तो आपको क्या करना है, ये जो आंसर आया था है ना वही का वही, ये मैंने क्या कर दिया इनवर्स आएगा, सॉरी यस इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे 1 अपॉन एस माइनस ए लिया ना हमने. सो यहाँ पे वही फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे. सो 3 इंटू ये हो जाएगा ई रेज टू माइनस ए मीन्स 1, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस टी. सो दिस इज अवर फाइनल आंसर. ओके, सीधा Yes, फॉर्मूला से है ना. एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनीबॉडी? No doubt, No sir. doubt, sir. ओके, Doubt, sir. then next, okay, next example उससे थोड़ा difficult, that means Laplace inverse of, we want to find the Laplace inverse of s plus 4 upon s plus 2 square plus 9. चलो कैसे करेंगे, anybody have any idea? तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट शिफ्टिंग, यस और नो? Yes, Yes, sir. है ना, क्योंकि s की जगह पे s प्लस 2 बैठा है ना, तो s की जगह पे s प्लस 2 है तो ऊपर s प्लस 2 होना चाहिए. तो आई एडजस्ट दिस बाय दिस वे, s प्लस 2 प्लस 2, ओके, डिवाइड बाय s प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 9. ओके एवरीबॉडी? Yes, sir. Now Yes, sir. we can separate it, that means s plus 2 divided by s plus 2 whole square plus 4 plus Laplace inverse of 2 upon s plus 2 square plus 9. ये 4 नहीं है 9 है, yes 9 is there, not a 4, so here we have 9. Okay, now tell me the Laplace inverse of s plus 2 upon s plus 2 square plus 9 है, तो मुझे ये फॉर्मूला बताओ. चलो आपने लास्ट लेक्चर की फॉर्मूला अगर अच्छी तरीके से देखा है तो यू कैन डू वेरी वेल. s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, Laplace inverse of s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये किसका लाप्लास होता है? Cos 80. यस Cos 80. Sir, cos 80. यस cos 80. सो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे cos 80, क्योंकि इसको ऐसे काउंट करो पहले, है ना, तो s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9, तो ये हो जाएगा cos
3t, yes or no? Yes, sir. है ना? Yes, sir. अब s की जगह पे s प्लस 2 बैठा है तो e रेस टू क्या हो जाएगा, माइनस 80 होगा, है ना? तो e रेस टू माइनस 2t, क्योंकि s की जगह पे s प्लस 2 है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि s माइनस a करना पड़ता है, तो यहाँ पे s माइनस माइनस 2 करेंगे तब जाके आपका s प्लस a होगा, और s प्लस a हुआ दैट मीन्स e रेस टू माइनस 2t हो जाएगा। d2d वाले पता चल गया सबको? इज इट ओके? सर Yes, कॉस sir. 3t कैसे आया? क्या? 3t कैसे आया सर? 3t, ओके। तो देखो यहाँ पे a की जगह पे क्या है, यहाँ पे हमारे में 9 है a स्क्वायर की जगह पे, तो a क्या हुआ मेरा 3 हो जाएगा ना, यस सर। तो इसीलिए वहां पे 3t आ गया, क्योंकि cos 80 तो 3, तो यहाँ पे आपका a दैट मीन्स 3 स्क्वायर हो जाएगा ये, इसीलिए। ओके, ओके सर। नाउ टेल मी द आंसर ऑफ दिस, एनीबॉडी? तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे 2 को मुझे बाहर ले लेना पड़ेगा, तो 2 मैंने बाहर ले लिया। अब यहाँ पे हमको पता है कि a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसका होता है, Sin 80. Sin 80. साइन 80। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा पहले साइन 3t डिवाइड बाई 3, क्योंकि ऊपर 3 होना चाहिए ना, यहाँ पे नहीं है तो 1 हो गया, तो 1 है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाई 3 किया मैंने। अब s की जगह पे s प्लस 2 बैठा है, देन इट इज नथिंग बट अवर e रेज टू माइनस 2t। एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. सो e रेज टू Yes, sir. माइनस, यहाँ बहुत कम में e रेस टू माइनस 2t कैसे है, वो फिर से रिपीट करेंगे? हाँ कर देता हूँ, 1 मिनट, हाँ मैं पहले लिख देता हूँ, प्लस 2/3 साइन 3t। ओके चलो यहाँ पे सबका ध्यान है ना, लुक एट हियर एवरीबॉडी, देखना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड होगा, यस देखो यहाँ। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने अभी आपको बताया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम e रेज टू 80 इंटू यहाँ पे f ऑफ t होता था, तो हम करते थे s की जगह पे s माइनस a, ओके, लाप्लास ट्रांसफॉर्म f ऑफ t में। तो यहाँ पे सिंपल एक एग्जांपल ले लेता हूँ तो आपको पता चले कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म e रेज टू 2t इंटू साइन 4t होता था, इसे हम काउंट कर रहे हैं। ओके, तो पहले हम क्या करते थे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन 4t फाइंड करते थे, और उसमें s की जगह पे s यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे s माइनस 2 करते थे। ओके, तो यहाँ पे देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन 4t क्या होता था, 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट मीन 16, और उसमें हमको करना है s टेंस टू s माइनस 2, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता था 4 अपॉन s माइनस 2 स्क्वायर प्लस 16। नाउ इज इट ओके? Yes, sir. तो लाप्लास इनवर्स इसका करेंगे ना तो कुछ नहीं है, वो वही का वही आंसर आएगा, स्क्वायर प्लस 16 अगर मुझे करना है तो दिस इज योर आंसर, e रेज टू 2t, क्योंकि s की जगह पे s माइनस 2 है, इनटू a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो यहाँ पे हो जाएगा साइन 4t। ओके एवरीबॉडी नाउ अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस सर। जिसको नहीं पता चला था उनको पता चल गया? यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल। चलो वो थोड़ा देखो, हमने पहला एग्जांपल बहुत सिंपल किया, उसके बाद हमने सेकंड एग्जांपल किया फर्स्ट शिफ्टिंग की हेल्प से, अब थर्ड एग्जांपल जो है वो थोड़ा ट्रिकी, तो थोड़ा पहले आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सी मेथड यहाँ पे अप्लाई करूँगा। ओके, तो सबसे पहले जैसे ऐसे थोड़ा एग्जाम्पल डिनोमिनेटर में हो तब डिनोमिनेटर के बारे में ज्यादा सोचना है, कैन वी फैक्टराइज इट, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं डिनोमिनेटर को, थिंक अबाउट इट, कर सकते हैं? एवरीबॉडी, इज इट पॉसिबल टू फैक्टराइज दिस वन? No, sir. नो, रियली? सर होगा ना यस, क्या होगा? सर, ये स्क्वायर माइनस 3s प्लस 2 को s माइनस 2
और s minus 1. यस, सो s स्क्वायर माइनस 3s प्लस 2 का अगर आप Sir, s minus 2 and s minus 2. S S minus 1 and s minus 2. यस, यस और नो एवरीबॉडी? Yes sir. Yes. है ना? तो जब भी आपको इनवर्स वाला एग्जांपल दिया है और इसे डिनोमिनेटर में एक फैक्टर है या फिर दूसरा है, तो इसको पहले फैक्टराइज करने के लिए ट्राई करो। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखना यहाँ पे सबसे पहले 2s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 5, और ये 100% मेथड पूछा जाता है, तो इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ओके, जो हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे देन वी गो फॉर द इनवर्स लाप्लास। सो यहाँ पे देखो, सो 2s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 5 डिवाइड बाय s minus 1, s minus 2, s minus 3. Everybody understand up to here? Yes, sir. Yes, sir. Now, how we can find the partial fraction? Partial fraction कैसे करेंगे? Non-repeated Sir, linear. a upon s minus 1 plus. Non-repeated linear form होगा ना? Okay, which case is applicable? First sir. First case. S1. Yes, first case, because all are the linear factor, है ना? यहाँ पे देखो x minus a, x minus b, x minus c टाइप का है, तो ये लीनियर हो गया क्योंकि वह कहीं पर भी स्क्वायर नहीं है ना, तो दैट मीन्स लीनियर। तो जब भी ऐसे लीनियर होते हैं तो हम क्या करते हैं, a अपॉन फर्स्ट वन प्लस b अपॉन सेकंड वन प्लस c अपॉन थर्ड वन। इज इट ओके अप टू हियर एवरीबॉडी? Yes, Yes, sir. sir. नाउ वी कैन टेक एलसीएम। तो यहाँ पे a इंटू एलसीएम लूंगा, तो यहाँ पे एलसीएम मेरा होगा s माइनस 1, s माइनस 2, s माइनस 3। तो यहाँ पे a इंटू क्या हो जाएगा, तो ये दोनों जो बाकी बचे वो आ जाएंगे, दैट मीन्स s माइनस 2, s माइनस 3। ये तो आप है ना प्राइमरी में करते थे, एलसीएम लेना तो आता है ना सबको? Yes, sir. एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर है ना, एलसीएम यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, प्लस सी इंटू एस माइनस 1 इंटू एस माइनस 2। उसमें कुछ है नहीं, ए है तो ए के नीचे एस माइनस ए 1 है, तो एस माइनस 1 के अलावा जितने बचे उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। बी के नीचे एस माइनस 2 है तो उसके अलावा जो भी है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। सी के नीचे जो है उसके अलावा जितना बचा उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज द एलसीएम। ओके, एनी डाउट अप टू हियर एनीबॉडी? No doubt, sir. दो तीन बच्चे ही कंफर्मेशन दे रहे हैं, व्हाट अबाउट अदर्स? No doubt, sir. ऑफलाइन में जो आए उनको डाउट है? ओके, थैंक यू। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, कैन वी कंपेयर बोथ द थिंग्स, मींस यहाँ पर भी एलसीएम जो है, डिनोमिनेटर जो है वही का वही यहाँ पे होगा, तो वी कैन कंपेयर द न्यूमरेटर, दैट मींस 2s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 5 इक्वल टू दिस वन, दैट मींस यहाँ का न्यूमरेटर है a इंटू एस माइनस 2, s माइनस 3, b इंटू एस माइनस 1, s माइनस 3 plus c into s minus 1, s minus 2, and this is your equation 1. Say equation 1. Okay, everybody? Yes or no? Yes, sir. Okay. Now I want to find the value of a. कैसे करेंगे? आप 11th 12th में गुजकेट में करके आए हो ये चीज, चलो बताओ मुझे। इंटीग्रेशन के लिए करते थे ना हम ये यूज, तो मुझे a फाइंड करना है। सो what I can substitute in equation 1, then I get a. S is equal to 1. S minus 1 is equal to 0. 0 के साथ इक्वेट करेंगे। यस, तो उसका डिनोमिनेटर जो है मुझे a फाइंड करना है, तो उसका डिनोमिनेटर है उसको 0 लेना है। जब लीनियर फैक्टर है तभी ये आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, अदरवाइज यू डोंट गो विद दैट। ओके, सो s इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पुट s इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। Yes or no? Yes, sir. तो Yes, चलो sir. s इज इक्वल टू 1 बोथ साइड रिप्लेस करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 6 प्लस 5 इज इक्वल टू
A into this one. So A into 1 minus 2, so minus 1. 1 minus 3, so minus 2. Plus B into यहाँ पे देखो 1 minus 1 तो 0 हो गया, ये तो पूरा 0. C into 0. ओके, तो यहाँ पे मुझे कितना बचा है? यहाँ पे 7 minus 6 तो 1 हो गया. माइनस माइनस प्लस 2 है ना, ये 2 बचा ना यहाँ पे. सो यहाँ पे Yes. Yes, sir. A. So my value of A is equal to 1 by 2. Is it okay, everybody? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Any doubt? Any confusion? No, sir. No doubts. No, sir. Now tell me, what we substitute for B? S 2, sir. equal to 2. S equal to 2. S is equal to 2. So we substitute here S is equal to 2. So put S is equal to 2 in equation 1. Then here you have 4 into 2, that means 8 minus 6 into 2, that means 12 plus 5 equal to A into यहाँ पे 2 minus 2 तो वो तो 0 हो गया, सीधा 0 ही लिख रहा हूँ, प्लस B into यहाँ पे देखो 2 minus 1 हो गया 1 and 2 minus 3 हो गया minus 1 है ना, प्लस C into 0, that means वो भी 0 हो जाएगा. So we have 8 plus 5, कितना हो जाएगा 8 plus 5? 13. 13 minus 12, 1. 1. So 1 equal to यहाँ पे minus B हो जाएगा. So B is equal to minus 1. Is it okay? Yes, Yes, sir. sir. And similarly, we can find our C. कैसे मिलेगा? Put क्या रखेंगे यहाँ पे? S minus 3 is equal to 0. So S is equal to 3. So put S is equal to 3 in equation 1. चलो equation 1 में हम S is equal to 3 substitute करते हैं. तो क्या होगा? 3 9 9 into 2 18 18 minus 18 plus 5 equal to, here you have A 3 minus 3, that means 0, plus B भी हो जाएगा 3 minus 3 की वजह से 0, and last one is C. So C 3 minus 1, that means 2, and 3 minus 2, that means 1. So we have here 5 equal to 2 into C. So we get C is equal to 5 by 2. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, so what we have now, what we deduce? So we deduce that, देखो यहाँ पे जो हमको दिया था उससे हम लिखेंगे इज इक्वल टू, ये लिख सकता हूँ कि नहीं मैं? Yes, sir. है ना, तो वही का वही यहाँ पे लिखना है. सो 2s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 5 डिवाइड बाय s माइनस 1, s minus 2, s minus 3 equal to a upon s minus 1 था, plus b upon s minus 2 था, c upon s minus 3 था. It is nothing but 1 by 2 divided by s minus 1 plus b की जगह पे minus 1, so minus 1 upon s minus 2 plus c की जगह पे 5 by 2, so 5 by 2 upon s minus 3. So any doubt, any question up to here? Anybody? No doubt, No, sir. sir. Apply inverse Laplace transform from both sides. Okay, so दोनों साइड पे अगर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम अप्लाई करते हैं तो व्हाट वी गेट? लाप्लास इनवर्स ऑफ 2s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 5 डिवाइड बाय s माइनस 1, s माइनस 2, s माइनस 3, ओके, इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ फर्स्ट वन. So 1 by 2 divided by s minus 1 plus Laplace inverse of second one. So minus 1 upon s minus 2 plus Laplace inverse of 5 by 2 divided by s minus 3. And if you put 1 by 2 outside, so what we have? Laplace inverse of 1 upon s minus 1. So what is the answer of 1 upon s minus 1?
e raised to t. Yes, e raised to t because a is equal to 1 plus यहाँ पे sorry minus 1. So minus 1 is outside. So minus 1. Laplace inverse of 1 upon s minus 2. E raised to 2t. E raised to 2t and plus 5 by 2 Laplace inverse of 1 upon s minus 3. E raised E to raised to 3 3t. e raised to 3t. ये सब कुछ आप देख रहे हो फॉर्मूला की हेल्प से आ रहा है. So if you prepare formula in such a way, then you can do in good manner. Okay, everybody? आप अच्छी तरीके से कर सकते हो. Yes. Otherwise you cannot do. Understand? Yes, yes sir. sir. Yes. So is there any doubt, any question in this example? Anybody? Any step? No doubt, sir. कोई भी स्टेप में नहीं पता चला है तो प्लीज आस्क मी. No doubt, everybody? No doubt, sir. No doubt, No sir. doubt, sir. Okay. Now we go for the next example. Find the inverse Laplace transform of following. That means 4s plus 5 divided by s minus 1 whole square s plus 2. अब इससे आगे तो हम फैक्टराइज नहीं कर सकते ना डिनोमिनेटर का. No, sir. नो सर No, बट कैसे sir. हो जाएगा? सर s माइनस 1 का होगा ना, s माइनस 1 होल स्क्वायर का. नहीं, उसके लिए तो सीधा हम पार्शियल फ्रैक्शन नहीं अप्लाई कर सकते. सर उसको ऊपर फैक्टराइज कर देंगे ना तो फिर वो लीनियर फॉर्म में हो जाएगा ना. नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते. इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने इसी को कर दिया तो फिर केस 2 बनाने की जरूरत ही नहीं थी ना हमको पार्शियल फ्रैक्शन में. अंडरस्टैंड? ओके सर. तो सर a s माइनस 1 प्लस b s माइनस 1 प्लस थर्ड टर्म. हाँ, कैसे होगा देखो. केस 2 क्या था हमारा p ऑफ x अपन q ऑफ x, और q ऑफ x आपका इस टाइप का है रेज टू n टाइप का. तो हम क्या करते थे a1 अपॉन फर्स्ट टाइम प्लस a2 अपॉन सेकंड टाइम प्लस a3 अपॉन थर्ड टाइम एंड सो ऑन. nth टाइम था इसीलिए n टाइम तक गए थे. हमारे केस में 2 टाइम्स है तो फर्स्ट कांस्टेंट डिवाइड बाय फर्स्ट टाइम प्लस कांस्टेंट डिवाइड बाय सेकंड टाइम. यस और नो? अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. है ना. तो हम केस 2 के हिसाब से इसमें हमको पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा. सो दिस इज अगेन द एग्जांपल ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन टू फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म. सो अगेन कहां से स्टार्ट करेंगे? हियर करके लिख सकते हो आप. हियर 4s प्लस 5 डिवाइड बाय s माइनस 1 स्क्वायर प्लस सॉरी नॉट अ प्लस इनटू s माइनस s plus 2, s minus 1 whole square into s plus 2. So इसका partial fraction we can use case number 2 and case number 1. So a upon s minus 1 one time plus b upon s minus 1 whole square 2 times plus अब इसका खत्म हो गया. अब इसके लिए तो ये this is the linear factor. Yes or no? Yes, sir. So Yes. c upon s plus 2. Is it okay, everybody? Yes sir. Okay. Now tell me the LCM. Here LCM is s minus 1 whole square into s plus 2. यही होगा जो यहाँ पे था वही का वही LCM होगा. चलो तो यहाँ पे a के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन में आएगा कोई बताएगा मुझे? मैं चेक कर रहा हूँ कि आपको LCM आता है कि नहीं. s minus 1 S into minus s 1 minus into s minus 2. s plus 2. वेरी गुड. यहाँ पे पूरा होल स्क्वायर मत कर देना है ना, क्योंकि ऑलरेडी एक है तो उससे एक एक कैंसिल हो जाएगा. सिर्फ एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको. b इंटू क्या होगा? s plus 2 s plus 2. ओनली s plus 2. वेरी गुड. एंड c इंटू क्या आएगा? s minus 1 whole square. वेरी गुड. ओके, s minus 1 होल स्क्वायर मीन्स जो यहाँ पे आपने लिखा है उसके साथ इसको आपको डिवीजन करना है. वॉट एवर यू हैव टू राइट डाउन. ओके, तो यहाँ पे मेरा हो गया. नाउ वी कैन कंपेयर और वी कैन इक्वेट बोथ द साइड. सो वी हैव 4s plus 5 is equal to a s minus 1 s plus 2 plus b s plus 2 plus c s minus 1 whole square.
से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नो, इसको नहीं बोलेंगे, चल, क्योंकि ये केस नंबर 1 जैसा नहीं है, इसलिए सीधा आपको मिल जाएगा वैल्यू, सीधा वैल्यू मिलेगा हमको किसी का भी। नो सर। हाँ, सी का सिर्फ मिलेगा, ये दोनों का आप रिस्क नहीं ले सकते। ओके, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ए एंड बी फाइंड करने के लिए आपको थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अब ए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, एस स्क्वायर प्लस 2s माइनस एस माइनस 2 प्लस बी एस प्लस 2 प्लस सी। अब इसको ओपन करो, सो एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। लुक एट एवरीबॉडी, नहीं तो नहीं पता चलेगा ये। ओके, अब यहाँ पे देखो एस स्क्वायर वाले कितने हैं यहाँ पे, उसको साथ में करना है, फिर एस वाले जितने हैं उसको साथ में करना है, एंड देन वी गो फॉर द कांस्टेंट। तो एस स्क्वायर वाले कहाँ कहाँ पे, चलो बताओ मुझे, उसका कोफिशिएंट क्या आएगा। तो पहले तो यहाँ पे है, यस और नो? यस सर। तो दो जगह पे है, तो यहाँ पे आपको एस स्क्वायर के ब्रैकेट में आपको लिखना है, यहाँ से ए आएगा प्लस सी है, यहाँ पे सी इंटू एस स्क्वायर है तो प्लस सी आएगा। ओके, सो ये एस स्क्वायर का कंप्लीट हो गया। अब एस के लिए कौन कौन सी जगह पे, तो यू कैन सी यहाँ पे 2s में एस है, यहाँ पे माइनस एस में एस है, यहाँ पर भी एस है, एंड यहाँ पर भी एस है, तो उसका कोफिशिएंट यहाँ पे लिखेंगे। सो एवरीबॉडी लुक एट हियर, सो 2a वो पॉजिटिव है, सो 2a लिखा, माइनस ए, सो माइनस ए लिखा, यहाँ पे b प्लस b है, प्लस b, एंड यहाँ पे माइनस 2c हो जाएगा। ओके, यस सर। यस सर। नाउ वी गो फॉर द कांस्टेंट। तो कांस्टेंट में तो ये पूरा आएगा माइनस 2 इंटू ए, सो माइनस 2a, फिर यहाँ पे प्लस 2b, फिर यहाँ पे प्लस सी, मीन्स कांस्टेंट मीन्स विदाउट एस। ओके, तो अब इसको हम बोलेंगे दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, जब फर्स्ट केस के अलावा कोई भी केस है तब। ओके एवरीबॉडी, यस सर। यस सर। now to find the value of c we substitute, put s is equal to minus 2 in equation 1. okay, so s is equal to minus 1, इसमें minus 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, चलो बताओ, इसमें सब्स्टिट्यूट करे उससे अच्छा इसमें सब्स्टिट्यूट करे तो, यस और नो? सर यस सर। बोलो बोलो। सर a प्लस बी माइनस 2c इज इक्वल टू 4 और माइनस 2a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 5 लेके तीन इक्वेशन बना दे तो नहीं चलेगा सर? हाँ चलेगा ना, क्यों नहीं a चलेगा? प्लस c 0 हो जाएगा तो a इज इक्वल टू माइनस c से। वही करना है, लेकिन c का डायरेक्ट मिलेगा लीनियर फैक्टर से, इसीलिए मैं पहले c का फाइंड कर रहा हूं, नहीं तो फिर यही करना है, कंपैरिजन ही करना है। ओके, गॉट इट? यस सर। यस सर। तो s इक्वल टू माइनस 2, जो c जो लीनियर है उसका जल्दी मिल जाएगा, इसलिए उसके लिए मैं कर रहा हूं। सो s इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन a, इसको इक्वेशन a बोल दिया। चलो a तो यहाँ पे हमने यूज कर लिया है, तो रोमन में 1 लिख देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी a हमने यहाँ पे यूज किया है ना, तो वो नहीं लेंगे, रोमन में 1 कर देता हूँ। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 इन रोमन। ओके, सो यहाँ पे इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो क्या होगा, 4 इंटू माइनस 2, तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस 8 प्लस 5 इक्वल टू, यहाँ पे माइनस 2 प्लस 2 करके 0, यहाँ पे माइनस 2 प्लस 2 करके 0, सो 0 प्लस 0 प्लस c इंटू यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 माइनस 1 होल स्क्वायर, सो माइनस 3 स्क्वायर। सो वी हैव हियर माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 9c, so c is equal to minus 1 by 3. Yes or no? Yes sir. Everybody understand? Yes. यस सर। Now from equation 1, चलो अब a and b फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 में वापस जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंपेयर करो, तो s स्क्वायर का यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स a प्लस c इज इक्वल टू हो गया 0, है ना। तो यहां से मेरा a हो जाएगा a इज इक्वल टू माइनस सी, सो a इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा 1 by 3।
ओके डन, क्योंकि c हमने फाइंड कर लिया था ना, तो -1/3 था, तो मैंने -1/3 यहाँ पे रिप्लेस किया, सो माइनस माइनस प्लस 1/3. देन ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा, कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हो, है ना, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो. तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2a माइनस a मीन्स a प्लस b माइनस 2c इज इक्वल टू 4, क्योंकि s का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है ना. सो यहाँ पे ये दोनों को कंपेयर करना है. तो a भी मेरे पास है, c भी मेरे पास है, तो b यहाँ से अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो क्या होगा, b इज इक्वल टू 4 माइनस a प्लस 2c. Yes or no? Yes, sir. So 4 minus 1/3 and यहाँ पे minus 2/3. So total हुआ 4 minus 3/3, क्योंकि -1 -2 -3/3 and 4 minus 1. So we have the 3. So we have b is equal to 3. Any doubt? Any question? Anybody? No doubt, sir. સર આ a plus c is equal to 0 ત્યાંથી પાછું સમજાવો ની. a plus c is equal to 0 से હા સર. ओके अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, तो मैं एक मिनट इन कलर, यस ये देखो ये जो है और यहाँ पे स्क्वायर है ही नहीं, तो स्क्वायर नहीं है तो मैं यहाँ पे इसे 0 इंटू स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि बेसिकली 0 ही हुआ ना. इज इट ओके? યસ સર. है ना, तो अगर दोनों के बीच में इक्वल टू है तो एस स्क्वायर के आगे वाला यहाँ पे जो है वो दोनों सेम होंगे तभी इक्वल टू होगा ना. तो हमने यहाँ पे यूज किया a प्लस सी इज इक्वल टू एस स्क्वायर के आगे 0 था, तो मैंने a प्लस सी इज इक्वल टू 0 ले लिया. ओके तो a इज इक्वल टू हुआ माइनस सी एंड a इज इक्वल टू माइनस सी हुआ, तो आप c की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे -1/3, सो माइनस माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा. तो यहाँ कोई प्रॉब्लम? नो सर. ओके अब सेम तरीके से मैंने यहाँ पे s के लिए कंपेयर किया, तो यहाँ पे 4 था और यहाँ पे पूरा था, लेकिन इसको थोड़ा सॉल्व करूँ तो क्या हो जाता था, 2a माइनस a मीन्स a प्लस b माइनस 2c इज इक्वल टू 4. यस और नो? यस सर. अब इसमें से मुझे सिर्फ b बाकी था, तो मैंने b को सब्जेक्ट बना दिया, है ना. सो b इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस a और ये उस साइड जाएगा तो प्लस होके जाएगा, सो प्लस 2c. अब a एंड c जो मेरे पास था वो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया और सॉल्व किया. ओके यस सर. ओके नाउ एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनीबॉडी? नो सर. No doubt, sir. ओके सो फिर से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं ना. सो वी हैव क्या था हमारा स्टेटमेंट, 4s प्लस 5 डिवाइड बाय व्हाट इज इट, s माइनस 1 होल स्क्वायर into s plus 2 is equal to a upon s minus 1 plus b upon s minus 1 whole square plus c upon s plus 2. जो यहाँ पे लिखा है वही का वही लिखना, नहीं तो आपका abc चेंज हो जाएगा. ओके सो a इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 1/3, सो 1/3 अपॉन s माइनस 1 प्लस b मेरा हो जाएगा 3, सो 3 अपॉन s माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c मेरा हो जाएगा -1/3 अपॉन s प्लस 2. ओके एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके देयरफॉर लाप्लास इनवर्स, दोनों साइड पे लाप्लास इनवर्स अप्लाई कर रहा हूँ. सो 4s प्लस 5 डिवाइड बाय s माइनस 1 होल स्क्वायर s प्लस 2 इज इक्वल टू 1/3 आउटसाइड चला जाएगा. अब व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस 1, वो लिखते हैं चलो बाद में. यहाँ पे 3 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस 1 होल स्क्वायर एंड लास्ट वन इज -1/3 है, तो उसको भी मैं बाहर लिख देता हूँ -1/3 एंड ये लाप्लास इनवर्स ऑफ
1/s+2। ओके, तो चलो मुझे आंसर बताओ इसका क्या होगा। 1/3 तो एज इट इज। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s-1? e raised to e raised to 1. t है ना, क्योंकि 1 है ना तो e⁻t। चलो गुड, +3। अब इसका क्या होगा 1/s-1 होल स्क्वायर। हाँ सॉरी, t square t²। ओके चलो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। लाप्लास ट्रांसफॉर्म t⁻n होता था हमारा, क्या होता था, किसी को याद है? minus नो, of 1 n raised to factorial n upon s raised to n+1. वेरी गुड। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास उल्टी प्रोसेस है। लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s⁻n+1 इज इक्वल टू हो जाएगा t⁻n/n। और हमारे केस में यहाँ पे बैठा है s-1 होल स्क्वायर, तो हियर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इज देयर। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में s की जगह पे s-1 है, तो e⁻t तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यस और नो? Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे बचा 1/s²। तो 1/s² का यहाँ पे n+1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। सो n इज इक्वल टू कितना हुआ 1. 1। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s², अब इसमें n इज इक्वल टू 1 रिप्लेस करो, सो t⁻1 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल। तो व्हाट इज माय आंसर? t। t. इज इट ओके एवरीबॉडी? Yes, Yes. sir. ओके, सो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय टी -1/3 एज इट इज। अब ये तो सिंपल है, अगेन लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+2, तो वी हैव e⁻−2t आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। ओके एवरीबॉडी, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? No doubt. No, sir. No हाउ doubt. मेनी स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस? प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। हाँ जल्दी क्विकली करना। I want to know how many students understand and how many students are physically present in our class, mentally and physically both. Only 15 students? Yes, 16. Okay, 17. Very good. 18. Very good. So 15 students, 50% student know this. Okay, understand this. Yes, 25. Very good, very good. ये तो बहुत बढ़ गया, अच्छा है। किसी को डाउट है बेटा? Anybody? No doubt. Okay, then we go for the next example. चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, you can understand very well. Next example is difficult to this one. Okay, चलो next. हेलो सर। हाँ यस बेटा। सर इसको फैक्टराइज करेंगे ना, s² + 2s + 5 को, मिलेगा, तो मिलेगा। इज इट पॉसिबल? सर s+1 s+1 हो जाएगा ना, नहीं होगा, क्योंकि x का वैल्यू -1 x1 -1 और x2 भी -2 आएगा। नहीं आएगा बेटा, चेक पर इट। इसका फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, आप चेक करो, क्योंकि 5 को ऐसे सेट करना है कि 2 आए। इट इज नॉट पॉसिबल। यस और नो एवरीबॉडी? Yes, sir. है ना? तो चलो ये मैं Yes, थोड़ा sir. आपको सोचने के लिए होमवर्क में दे रहा हूँ। ओके, सो इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन अप टू हियर? एनीबॉडी? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? no sir No Okay. doubt. No ओके, doubt.
अब मैं थोड़ा इसको हिंट भी दे देता हूँ ताकि आप कर पाए, है ना। फिर से हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे देखो 5s प्लस 3 डिवाइड बाई s माइनस 1 s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, तो यहाँ पे 5s प्लस 3 डिवाइड बाई s माइनस 1 s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। ओके, वी हैव नाउ you can write down in this way using partial fraction a upon ये हो जाएगा s माइनस 1 प्लस, यहाँ पे देखो दिस इज द थर्ड केस, है ना। पार्शियल फ्रैक्शन में थर्ड केस जो किया था वो याद करो। यस, देखो अगर आपका स्क्वायर वाला कोई है जिसका फैक्टराइजेशन नहीं मिल सकता, उसको आपको इस हिसाब से लिखना है, दैट मीन्स कांस्टेंट इनटू एक्स प्लस सेकंड कांस्टेंट डिवाइड बाय होल फैक्टर। ओके, तो हाउ वी कैन राइट डाउन इन दिस आवर एग्जांपल। सो वी हैव ऑलरेडी यूज ए, सो ये हो जाएगा बी एस प्लस सी डिवाइड बाय होल फैक्टर, सो एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। Is it understand? Yes. Okay. Now take LCM. So we have a into s square plus 2s plus 5 plus bs plus c into s minus 1 divide by, here we have s minus 1 s square plus 2s plus 5. Okay. Now we can compare both side. Okay, दोनों side compare कर सकते हैं. So therefore 5s प्लस 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 प्लस, अब यहाँ पे देखो इसको ओपन करना पड़ेगा आपको, है ना, तब जाके आपको कुछ नया मिलेगा। सो यहाँ पे देखो बी एस स्क्वायर माइनस बी एस प्लस सी एस माइनस सी। ओके, सो दोनों साइड मैंने कंपेयर करके मुझे इक्वेशन ये मिला। ओके, अब यहाँ पे देखो ए प्लस हो जाएगा बी इंटू एस स्क्वायर, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में किया ऐसे ही, 2a माइनस पी प्लस सी इंटू एस एंड कॉन्स्टेंट में आपको मिलेगा 5a एंड यहाँ पे माइनस सी। इज इट ओके एवरीबडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंड से दिस इज योर इक्वेशन 1। अब ए इक्वेशन से आपको ए बी एंड सी फाइंड करना है, कर पाएंगे एवरीबडी? Yes, Yes. sir. हाँ, सो ट्राई फॉर दैट। ओके, और उसके बाद लाप्लास इनवर्स फाइंड करने के लिए ट्राई करना। सो दिस इज द सिंपल काइंड ऑफ एग्जांपल ऑफ द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। मीन्स हमने पहले सिंपल किया, उसके बाद फर्स्ट शिफ्टिंग का किया, देन वी गो फॉर द पार्शियल फ्रैक्शन। अब ये तीनों में से कोई एक एग्जाम्पल तो 100% पूछा जाता है एंड मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है ये पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। ओके, सो पार्शियल फ्रैक्शन के एग्जाम्पल की प्रैक्टिस बहुत करना, नहीं तो फिर आप कांस्टेंट नहीं फाइंड कर पाएंगे, देन यू कैन नॉट फाइंड आउट द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। So is there any doubt, any question in today's session? Anybody? No, sir. No doubt. Okay.